Copy it. Copy the topics which we are going to cover. These are the topics we are going to cover in this chapter. बात नहीं. First thing we will see uniform and non-uniform circular motion. क्या होता है, उसमें क्या differences हैं, ठीक है? और फिर उसका acceleration derive करेंगे. हो गया कॉपी? फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल then it is called circular motion. You have already studied in your lower classes. And circle means what? An object keeps a constant distance from a point and moves in a plane, then the described path is circle. ठीक है? Circle means what? An object keeps a constant distance from a fixed point and moves in a plane, then it is circle. ठीक है? If we do not mention the word it moves in a plane, then it will be sphere. If we only say that an object moves such that its distance from a fixed point is constant, then that point is moving in a sphere, on the surface of a sphere, ठीक है? Not on the circle. But if we write an object moves with its distance constant from a fixed point in a plane, then it is circle. ठीक है? तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन लिख लो. An object moves in a circle then its motion is called circular motion. It is categorized into two types. देखो टाइप्स क्या क्या होते हैं. Circular motion can be categorized into two parts: uniform circular motion and non-uniform circular motion. First we will see what is uniform circular motion. Uniform circular motion means the object has constant speed throughout its motion. ठीक है? An object while in circular motion has constant speed. ठीक है? An object while in circular motion has constant speed, then it is called uniform circular motion. Constant speed होना चाहिए. ध्यान रखो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी. व्हाट डू वी नो अबाउट यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन मीन्स नॉन एक्सेलरेटेड मोशन और constant velocity. But uniform circular motion is little different. Uniform circular motion means
कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी तो हर मोमेंट चेंज करेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इन द सर्कल, ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इट मीन्स इट इज हैविंग चेंजिंग वेलोसिटी बट इट स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। एंड नॉन यूनिफॉर्म मीन्स स्पीड इज वेरिएबल, लिख लो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज वेरिएबल स्पीड। Non-uniform circular motion has variable speed, ठीक है। Now we are going to derive the formula for acceleration of uniform circular motion, ठीक है। Acceleration for uniform circular motion, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, दो मेथड हम लोग करते हैं। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट दिस पॉइंट, ऐसे मान लो जा रहा है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन, हाउ डू वी फाइंड एक्सेलरेशन, हाउ इट इज डिफाइंड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। so that we will try to find. So suppose we have a uniform circular motion, radius is r and speed is v, uniform means speed will be constant, ठीक है। So what we will do, we will try to find this thing, delta v by delta t, ठीक है। For very small time we will find, then we will have the instantaneous acceleration. So this thing we are going to calculate, limit delta t tends to 0, that is called dv by dt, and this is a, acceleration is dv by dt and that is calculated like this, ठीक है। So this thing we are going to do. So यहाँ से start करते हैं, starting point and the final point. So velocity is like this. Suppose this is v1 and here it is v2. What we have to do? We have to subtract इसको v initial and v final ऐसे लिख देते हैं, v initial and v final. So what we have to do? We have to subtract the velocities and we have to find the delta v. डेल्टा v कितना होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, दिस थिंग वी हैव टू डू। नाउ ये जो एंगल है इसको मान लो टोटल थीटा ले लिए, टोटल एंगल इज सपोज थीटा, तो हाफ हाफ हो जाएगा थीटा बाय 2 एंड थीटा बाय 2, ठीक है। v फाइनल माइनस v इनिशियल हम लोग को करना है। तो v फाइनल कैसे है, ड्रॉ करते हैं, इस तरह का होगा, एंड if you take the vertical line like this, यहाँ से कितना एंगल है बनाएगा, if you consider a line like this, what angle this v final will make, theta by 2, ठीक है, because for this line देखो दिस इज v फाइनल, इसका एंगल जो यहाँ पर आएगा इस लाइन, बिकॉज दिस लाइन इज टेंजेंट टू द रेडियस एंड दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस रेडियस, तो दोनों क्या होंगे, इनके बीच जो एंगल होगा, व्हाट एवर एंगल वी हैव बिटवीन दिस टू रेडियस, द सेम एंगल वी विल हैव बिटवीन दिस टू लाइंस। सो दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा बाय 2, इस तरह से बना है। दूसरा देखो v इनिशियल ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से, एंड दिस वन विल आल्सो मेक द एंगल थीटा बाय 2। तो ये दोनों हम लोग को पता है।
अब हम लोग को क्या करना है, v इनिशियल को v फाइनल से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका होता है, v इनिशियल को उल्टा कर देंगे एंड वेक्टर की तरह ऐड करेंगे, जो उल्टा कर दो v इनिशियल, ठीक है। एंड इसको हम डायग्राम में रखते हैं ऐसे, v फाइनल ये हो गया एंड इसको उल्टा करके इसके हेड से ज्वाइन किया जाए, ठीक है। दिस इज v फाइनल एंड दिस इज माइनस v इनिशियल। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट एंड दिस एंगल इज थीटा बाय 2, दिस एंगल इज थीटा बाय 2। ये वैल्यू कितना होगा हम लोग निकाल सकते हैं, कल ही हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, magnitude of velocity is same for both are having same length. This triangle will be isosceles triangle, ठीक है, and this length will be how much? If magnitude is v, can we write this length as v कितना होगा, sin theta by 2। देखो consider this triangle, hypotenuse length is v and this length will be how much, हाइपोटेनस का साइन थीटा बाय 2, ठीक है, हाफ। और टोटल अगर लिखे डेल्टा v कितना हो जाएगा, डबल ऑफ दिस, वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड डेल्टा v बाय डेल्टा t। ये चीज हम लोग करना, ठीक है। अब हम लोग को इसमें अप्रोक्सीमेशन भी ले लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन का डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसका क्या मतलब निकलता है, जैसे इसको स्मॉल किया जाए, इसका मतलब ये निकल रहा है कि दिस सेक्टर व्हिच इज फॉर्म्ड है, दैट सेक्टर इज वेरी स्मॉल इन साइज, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, यही मतलब है इसका। इफ वी आर टेकिंग वेरी स्मॉल टाइम मींस वी आर कंसीडरिंग वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस सर्किल, छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं, एंड दिस थीटा एंड टी ऑल आर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो हम लोग ना पहले क्या करेंगे कि थीटा को टी को थीटा के टर्म्स में लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है, टी को थीटा के टर्म्स में लिखने का ट्राई करते हैं। तो स्पीड पता है, ये लेंथ कितना होगा, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, व्हाट विल बी दिस आर्क लेंथ, थीटा इनटू आर, आर थीटा होता है ना, आर थीटा आर्क लेंथ, ठीक है। सो वी कैन राइट आर्क लेंथ एज आर थीटा। दिस लेंथ इज कवर्ड विद स्पीड v, तो टाइम कितना लगेगा, आर थीटा बाय v, डेल्टा t विल बी हाउ मच, आर थीटा बाय v, आर थीटा बाय v एंड यहाँ पर 2v sin थीटा बाय लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, केवल थीटा को हम लोग यहाँ देता है, आर वी सब कांस्टेंट हो जाएगा, 2v² ऊपर चला जाएगा बाय आर, और यहाँ बच गया लिमिट डेल्टा t के जगह हम लोग अब थीटा के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं। थीटा इज वेरी स्मॉल बिकॉज डेल्टा t इज वेरी स्मॉल मींस थीटा इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट लाइक दिस। ये चीज तुम लोग लिमिट अभी पढ़े, स्टार्ट हुआ है लिमिट, लिमिट नहीं स्टार्ट हुआ, ओके मैं बता देता हूँ, ये हम लोग ऐसे डिस्कस किए हैं, ठीक है, हम लोग इस चीज को डिस्कस किए हैं, याद है किसी को, साइन थीटा बाय थीटा फॉर स्मॉल वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, साइन थीटा बाय थीटा फॉर स्मॉल वैल्यूज हाउ मच, 1। हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन पढ़ते समय, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, ये यूज करेंगे हम। कितना आ जाएगा, इधर लिख लो, कितना आ जाएगा, 2v² बाय r, एंड सिंस यहाँ पर थीटा बाय 2 है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे थीटा बाय 2 करके यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस विल बी 1 एंड हम लोग को आ जाएगा 2, यानी कि v² बाय
आर, ठीक है। यहाँ पर हाफ लिखे ना, तो यहाँ हाफ लिखेंगे तो मैं मैच नहीं होगा, हाफ होगा, ठीक है, 20 बार तो दिस इज द एक्सेलरेशन वी हैव गॉट। देखो फिर से देखो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, स्टेप फिर से बता रहा हूँ कैसे। फर्स्ट वी हैव कंसिडर्ड ए सर्कल, वी कंसिडर्ड ए स्मॉल पार्ट ऑफ द आर्क, ठीक है। देन वी कैलकुलेटेड, वी रोट द v final and v initial which are having different directions but their magnitudes are same. Then for subtracting them we have inversed the v initial, ठीक है, and added with the v final, v initial are added like this, and then we have calculated this length using this right angle triangle v sin theta by 2, and then double of this is 2v sin theta by 2. This is the change in velocity between v initial and v final, ठीक है। Now change of velocity divided by time this is acceleration. Now time can be written r theta by v. How? Because we have to write time for moving from here to here. So for that we will write the arc length, that is r theta. R theta by v will be the time taken. That time is written here. Finally we have to make the approximation for a small angle, ठीक है। We have to take approximation for a small angle, ठीक है, instantaneous acceleration find out करने के लिए। In that case we will use this identity, हम लोग पहले पढ़े हैं इसको, and we are getting finally this v square by r. डायरेक्शन क्या होगा इसका? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या होगा? देखो चेंज किस तरफ आ रहा है, चेंज ऑफ v जो आया है डेल्टा v, इट इज along this direction like this, so it is coming towards center. So in circular motion we will have acceleration of magnitude v square by r, ठीक है, acceleration of magnitude v square by r and direction will be towards center, ठीक है। इसको लिख लो, हाँ इसको कॉपी कर लो पहले।